السلام علیکم ویورز، کیا حال چال؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پرنسپلز آف کمپٹیشنل تھنکنگ۔ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ ان پرنسپلز کو کس طرح استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کسی بھی پرابلم کو ان اے اسٹرکچرڈ مینر ایک جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکوینس بائی سیکوینس ہم اس پرابلم کو سولو کر سکتے ہیں۔ کمپٹیشنل تھنکنگ انوالو سیورل کی پرنسپل دیٹ گائیڈ دا پروسیس آف پرابلم سولونگ ان اے اسٹرکچرڈ مینر۔ پرابلم سولونگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ایک سسٹمیٹک اپروچ ہوتی ہے، آپ کوئی بھی پرابلم ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ سولو کرتے ہیں ان اے اسٹرکچرڈ مینر، ایک جو ہے طریقے کے ساتھ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ اس پرابلم کو آپ سولو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پرنسپلز آف کمپٹیشنل تھنکنگ میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ پرابلم انڈرسٹینڈنگ، کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو سب سے جو ضروری کام ہے اس کا جو ہے وہ پرابلم انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر سب سے پہلے آپ کو پرابلم کا پتہ ہوگا تو دین ہی آپ اس کا سلوشن فائنڈ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ پرابلم انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کو کون سی پرابلم ہے جس کا آپ نے سلوشن ڈھونڈنا ہے، اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق کہتا ہے کہ اگر میرے پاس 1 گھنٹہ ہو کسی بھی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے تو میں جو ہے 55 منٹس جو ہے تھنکنگ کروں گا، سوچوں گا کہ یہ پرابلم کیا ہے، اس کے لیے مجھے کون سا سلوشن چاہیے، تو 5 منٹ میں اس کا جو ہے وہ سلوشن جو سوچنے میں لگاؤں گا۔ مطلب 55 منٹ میں جو ہے وہ اس پہ اسپینڈ کروں گا کہ پرابلم کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، ٹھیک ہے، کیسے جو ہے یہ سولو ہوگا۔ تو 1 گھنٹے میں سے 5 منٹ میں سوچوں گا اس میں کہ اس کا سلوشن کیا ہے۔ تو جب آپ کو پرابلم اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کے لیے جو ہے سلوشن ڈھونڈنا اس کے لیے آسان ہے۔ تو پرابلم انڈرسٹینڈنگ آپ کا کیا ہے کہ اس میں آپ نے سمجھنا ہے کہ اس پرابلم کی مین جو پرابلم ایشو کیا ہے، اس میں آپ اس کی ریکوائرمنٹ فائنڈ کرتے ہیں، اس کے آبجیکٹیو دیکھتے ہیں کہ اس کی پرابلم کا جو ہمارے پاس مین پرابلم کیا ہے، اس کا ہم نے سلوشن کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم انوالوز آئیڈینٹیفائنگ دا کور ایشوز، مطلب اس میں سے مین جو اس کی پرابلم ہے، کور جو اس کے ایشو ہیں، ڈیفائن دا ریکوائرمنٹس، اس پرابلمس کے لیے کون سی ریکوائرمنٹ ہمیں چاہیے، اینڈ سیٹنگ دا آبجیکٹیوز، اور کون سے آبجیکٹیو جو ہے ہم نے حاصل کرنے ہیں، کون سا رزلٹ ہے اس کی آپ جو ہے ٹائم لائن کریٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کو آپ نے کس طریقے سے ٹریک کرنا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم از دا فرسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپ ان پرابلم سولونگ، اسپیشلی ان کمپٹیشنل تھنکنگ۔ کمپٹیشنل تھنکنگ کے اندر جو ہے پرابلم سولونگ آپ کی جو ہے سیکوینس وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ جو سسٹمیٹک اپروچ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے کوئی بھی پرابلم ہے اس کو سولو کرنا ہے، آپ اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ میں آپ کو کون سی چیز چاہیے، ہارڈ ویئر چاہیے، سافٹ ویئر چاہیے، کون سا ٹول چاہیے، جو آپ کا مطلب کور ایشو ہے وہ کون سا آپ کا جو ہے اس کی مین پرابلم ہے جس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کے آبجیکٹیو آپ نے سیٹ کرنے ہیں کہ اس کی جو ہے پروگرس کس طریقے سے ہے، میں نے کتنے دن میں اس کو سولو کرنا ہے، میرے پاس کتنا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ دس انوالو تھورلی انالائزنگ دا پرابلم ٹو آئیڈینٹیفائی اٹس کی کمپوننٹ اینڈ ریکوائرمنٹ بفور اٹیمپٹنگ ٹو فائنڈ اے سولوشن۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ نے سب سے پہلے انالائز کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے، پرابلم کیا کہہ رہی ہے، ہمیں اس کا سولوشن کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلے آپ اچھے طریقے سے پرابلم کو سمجھیں کہ پرابلمس کے کمپوننٹس کیا ہیں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں بفور اٹیمپٹنگ ٹو فائنڈ اے بیسٹ سولوشن۔ دین آپ جو ہے جب آپ کو پرابلم اچھے سے سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ اس کو آسانی کے ساتھ اپنا جو ہے سولوشن وہ اس کو حل کر سکیں گے، اس کو فائنڈ کر سکیں گے۔ آپ ایک ٹائم لائن سیٹ کر لیتے ہیں اپنا، فار ایگزامپل کہ آپ نے ایک پرابلم ہے اس کو سولو کرنا ہے 10 ڈیز کے اندر، تو آپ کیا کریں گے، کم از کم اس کو آپ جو ہے 5 دن یا آپ اس میں سے جو ہے 3 دن اس میں سے سوچیں اس کی پرابلم کیا ہے، اگر جو پرابلم ہے اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں ہمارے، اس میں کمپوننٹس کیا ہیں، تو جب آپ کو اس ریکوائرمنٹس اس کے کمپوننٹس سمجھ آ جائیں گے پھر آپ کو سولوشن اس کا فائنڈ کرنا آسان ہوگا۔ فار ایگزامپل ایکچولی اس میں مطلب 5 Ws کا ورک چل رہا ہوتا ہے۔ 5 Ws مین کیا ہوتا ہے کہ وٹ، وین، ویئر، ہو، وائی، کہ آپ نے اس میں فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا اس میں سے فائنڈ کرنا ہے، وین کب کرنا ہے، ویئر کہاں پہ فائنڈ کرنا ہے، ہو کون فائنڈ کرے گا، وائی کیوں فائنڈ کرنا ہے۔ مطلب آپ نے 5 Ws کے جو ہے وہ کوشچن جنریٹ کرنے ہوتے ہیں۔ آپ نے آئیڈینٹیفائی جب بھی کوئی پرابلم ہے جس کا آپ نے سولوشن ڈھونڈنا ہے اس کو آپ نے جو ہے سمپلیفائی کرنا ہے۔ کمپٹیشنل تھنکنگ میں ہم سمپلیفائی کرتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی ڈیلی لائف میں کوئی ایگزامپل ہو یا مطلب آپ کے پاس کوئی پرابلم ہو یا کمپیوٹر لینگویج کے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہو، تو آپ کے پاس جب یہ 5 Ws کے آنسر آ جائیں گے، اس کا سولوشن آپ کے پاس واضح ہوگا، تو اس کے ذریعے سے آپ کو آنسر جو ایڈ کرنا آسان ہوگا، اس پرابلم کو سولو کرنا آسان ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس آف پرابلم انڈرسٹینڈنگ، کہ اس کی امپورٹنس کیوں ضروری ہے ہمارے پاس پرابلم انڈرسٹینڈنگ کے۔ ہمارے پاس کلیئرٹی اینڈ فوکس آ جاتا ہے کہ جب ہمیں پرابلم کے ریکوائرمنٹس پتہ ہے، اس کے کمپوننٹس پتہ ہے، پھر ہم اس کو جو ہے مین پوائنٹ جس کا ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ ہم نے پرابلم جو فائنڈ کر رہے ہیں اس کا جو سولوشن ہے وہ کس طرح سے فائنڈ کرنا ہے۔ بائی فلی انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم یو کین گین کلیئرٹی آن وٹ نیڈ ٹو بی سولوڈ، دس ہیلپ یو فوکس آن دا رائٹ اسپیکٹ وداؤٹ گیٹنگ ڈسٹریکٹڈ بائی irrelevant ڈیٹیل۔
मतलब आपने कोई वेबसाइट बना रहे हैं, अब आपको पता चल जाए जी आपने स्कूल पे वेबसाइट बनानी है, आपने जो है न्यूज़ के लिए एक वेबसाइट बनानी है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट करेंगे ना। और जब आपको मेन पॉइंट, जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर आप उसमें कोई उसका सलूशन नहीं ढूंढ सकेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि आपने एक स्कूल वेबसाइट बनानी है, तो आप क्या देखेंगे कि उसको स्कूल के रिलेटेड सोचेंगे कि किन किन यूज़र ने जो है वो यूज़ करनी है, उसमें स्कूल स्टूडेंट्स हैं, टीचर है या स्टाफ है, उसका कलर स्कीम जो है वो स्कूल के मुताबिक रखेंगे, मतलब वो जो लोकली यूज़ होनी है या इंटरनेशनली यूज़ होनी है, या न्यूज़ की वेबसाइट है उसके कितने पेजेस होने। जब आपको वो प्रॉब्लम पता लग जाएगी, उसके रिक्वायरमेंट्स पता लग जाएंगे, तो आपके पास एक क्लैरिटी होगी, मेन फोकस होगा, तो आप फिर उसी पे फोकस करेंगे अदर देन, ठीक है। डिफाइनिंग गोल, proper understanding of the problem allow you to define clear and achievable goal. You can determine what the final outcome should be look like and set specific objective to reach that outcome. जब आपके पास गोल आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, मतलब उसमें कितने पेज चाहिए, उसकी कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, आपने ये वेबसाइट किसके लिए बनानी है, तो जब आपके पास वो गोल आ जाएगा कि इसमें ये मुझे आउटपुट चाहिए, उसमें मतलब यूज़र का डाटा एंटर, स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर सकें, उसमें सैलरी स्टाफ की देखी जा सकें, तो आपको जब उसकी गोल्स पता लग जाएंगे, उसकी जो है डिज़ायर्ड आउटपुट हमें जो चाहिए, तो फिर आप क्या करते हैं उसके मुताबिक वर्क करते हैं। इसके ज़रिए से जो है आपकी कॉस्ट भी बचती है, आप जो है अपने गोल तक फास्टली जो है अचीव करते हैं अपने गोल को। एफिशिएंट सोल्यूशन, कि जब आपके पास प्रॉब्लम का पता चल गया, आपका गोल पता चल गया, फिर आप उसमें से क्या ढूंढते हैं, एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढते हैं कि आप जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको जो आप बेस्ट पाथ। अब आपको पता है कि एक जो प्रॉब्लम होती है उसके जो है मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, एक प्रॉब्लम के आपके पास मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, उन सोल्यूशन में से आपने जो है बेस्ट पाथ जो चूज़ करना होता है, बेस्ट जो सोल्यूशन है वो चूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। व्हेन यू कंप्रीहेंड द प्रॉब्लम वेल यू कैन डिवाइस मोर एफिशिएंट इफेक्टिव सोल्यूशन, मतलब आपके पास कोई कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से उसको आप यूज़ करते हो, आप क्या करेंगे, या कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे स्मॉल यूनिट्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स के अंदर जब उसको कन्वर्ट कर लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे मैनेजेबल पार्ट्स में, तो फिर आप क्या करेंगे, हर प्रॉब्लम को जो है वो उस पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है यूज़र इंटरफेस के लिए ग्राफ, मतलब फ्रंट एंड के लिए आप अलहदा टीम मेंबर को काम देते हैं, बैक एंड के लिए अलहदा देते हैं, तो जो सारा उसमें मिल के काम करते हैं, ठीक है, तो फिर वो काम जो है वो अच्छा होता है, उसमें जो है बेस्ट आता है। यू कैन चूज़ द बेस्ट मेथड एंड टूल टू एड्रेस द प्रॉब्लम सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज, इसके ज़रिए से आप जो है बेस्ट मेथड चूज़ करते हैं, उसके टूल देखते हैं कि जो आपके पास एफिशिएंट सोल्यूशन है, जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो दे रहे हैं, उनको यूज़ करते हुए अपना टाइम भी बचाते हैं और अपने रिसोर्स भी बचाते हैं। Avoid mistakes. Avoid mistakes by thoroughly understanding the problem. You can avoid common pitfalls and mistakes. Misunderstanding the problem can lead to incorrect solution and wasted effort. मतलब आपके पास क्या आता है, जब आपको प्रॉब्लम सही से समझ आ गई, उसका जो आपको गोल आ गया आपके पास, आपने उसका सलूशन जो है वो ढूंढ लिया, तो फिर आप क्या करते हैं, उसके ज़रिए से आप जो है मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं कि आपको जो मेन रिक्वायरमेंट्स है आप उसी पे फोकस करते हैं। इससे आप जो है वो छोटी सी छोटी मिस्टेक, मतलब पिटफॉल्स एंड मिस्टेक्स पर जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। जब आपके पास प्रॉब्लम आपको जो है समझ नहीं आई, आपको जो है उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो इसके ज़रिए से जो है आप इनकरेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर देंगे, जिसके ज़रिए से एफर्ट भी वेस्ट होगी, कॉस्ट भी लगेगी। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं समझ आई तो उसका सलूशन जो है वो फिर रॉन्ग ही आएगा, कि डिज़ायर्ड आउटपुट आपके पास वो नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल आपने बनानी है बिल्डिंग का स्कूल वेबसाइट। अब आपने स्कूल वेबसाइट बनानी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि ये वेबसाइट किस के लिए चाहिए, किस स्कूल के लिए चाहिए, उनको कितने पेजेस रिक्वायर हैं, उनको जो है उसमें कौन कौन सी फंक्शनैलिटी चाहिए, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, मतलब उसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो मतलब उसमें ज़रूरी होनी चाहिए। नॉन फंक्शनल वो रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं कि जो ना भी हों तो वो गुजारा चल जाए, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी हैं। फंक्शनल तो आपके लिए मस्ट है ना, तो नॉन फंक्शनल ऐसी हैं जो उसके साथ भी ज़रूर हों। बिफोर जंपिंग इनटू अ कोडिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। मतलब आपने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने से पहले आपको डायरेक्ट कोडिंग नहीं स्टार्ट कर देंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉब्लम को कि आपने स्कूल की वेबसाइट बनानी है, उसमें कितने पेजेस होने चाहिए, उनको लोकल लेवल पे बनाना है, एक सिटी के लिए बनाना है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे बनाना है, किस लेवल पे बनाना है। तो आप उसको क्या करते हैं, उसकी आप 3 टाइप्स के ज़रिए से आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट फीचर डज द वेबसाइट नीड। फॉर एग्जांपल पेजेस फॉर न्यूज़, इवेंट, क्लास, कैजुअल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आप उसके फीचर, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि उसमें न्यूज़ का जो है पेज होना चाहिए, इवेंट का भी होना चाहिए, स्केड्यूल होना चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो उनको रिक्वायर है स्टेक होल्डर को या यूज़र को। यूज़र नीड्स, हु विल यूज़ द वेबसाइट,
मतलब जो यूज़र नीड है उसके मुताबिक उसको कौन सी वेबसाइट के अंदर फंक्शनलिटी है वो स्टूडेंट यूज़ करेगा, वो टीचर यूज़ करेंगे, पेरेंट्स यूज़ करेगा, या उसमें कोई स्टाफ है या उसमें जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उसमें कौन कौन सा जो है यूज़र वो नीड करेगा उसको यूज़ करेगा। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस हेल्प इन डिज़ाइनिंग यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, मतलब हम उन यूज़र्स को, यूज़र स्टेक होल्डर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक हम ऐसा फ्रंट एंड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बनाएंगे ताकि वो आसानी से उसको जो है वो यूज़ कर सकें। ठीक है, उनकी जो है यूज़र की नीड को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका जो है फ्रंट एंड उसको जो है डिफ़ाइन करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। टेक्निकल कॉन्स्टेंट व्हाट सोर्स एंड टूल्स आर अवेलेबल, मतलब हमारे पास कौन से टूल्स और सोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके जो है विदन हमने उसके अंदर रहते हुए अपना जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जो हमने वेबसाइट बनानी है। डू यू हैव एनी एक्सेस टू वेब सर्वर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर, कि मतलब उसके लिए आपको वेब सर्वर के लिए एक्सेस चाहिए, नेसेसरी कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए हमने टेक्निकल देखने का कौन कौन से हमें रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, टूल्स कौन से चाहिए, उनको जो है किस तरीके से एक्सेस चाहिए, सर्वर की एक्सेस भी चाहिए, वेबसाइट की भी चाहिए, तो एडमिन पैनल भी चाहिए, तो उसमें ये सब जो है चीज़ें वो देखी जाती हैं। डू बाय अंडरस्टैंडिंग दीज एस्पेक्ट यू कैन प्लान एंड बिल्ड अ वेबसाइट दैट मीट द नीड ऑफ यूजर्स स्कूल कम्युनिटी। ठीक है, जब आपके पास ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, आपके पास यूज़र नीड के भी रिक्वायरमेंट आ जाएंगी, आइडेंटिफाई आप कर लेंगे रिक्वायरमेंट्स को, टेक्निकल कॉन्स्टेंट्स भी आप देख लेंगे, इसके ज़रिए से जो है आप प्लान करेंगे, बिल्ड करेंगे वेबसाइट, तो वो यूज़र के नीड के मुताबिक होगी, तो वो उसको आसानी के साथ समझ सकते हैं, उसको जो है वो चला सकते हैं। सेकंड हमारे पास प्रिंसिपल है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, के जब हमने आइडेंटिफाई कर ली, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, उसका जो है एफिशिएंट सॉल्यूशन देख लिया, अब हमने क्या करना है, प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन करनी है। प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन किस तरह करनी है कि जब आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, आप क्या करेंगे, ब्रेकिंग डाउन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमने कंपोनेंट्स देखे थे कि आपने प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है। अब आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, आपने उसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, कि उसको मैनेजेबल पार्ट्स में, कि उसको हर जो है वो पार्ट्स पर फोकस करके उसको जो है वो क्रिएट किया जाए। फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनानी है तो उसका फ्रंट एंड का अलग पार्ट बनेगा, बैक एंड का अलग बनेगा। टू डिज़ाइन अ वेबसाइट ब्रेक डाउन द टास्क इनटू डिज़ाइनिंग द लेआउट, क्रिएटिंग कंटेंट, कोडिंग द फंक्शनलिटी। अब जो है वो डिज़ाइन द लेआउट कौन करेगा, डिज़ाइन वो डिज़ाइन डिपार्टमेंट करेगा, कंटेंट कंटेंट राइटर लिखेंगे, कोडिंग जो है वो कोडर करेगा, बैक एंड डेवलपर। ठीक है, अब जो मैनेजेबल पार्ट्स में वो उसको डिवाइड कर लिया, तो हर डिपार्टमेंट अलग अलग अपना काम परफॉर्म करेगा, एट द एंड उसको जो है वो मर्ज करके लॉन्च कर दिया जाएगा। तो प्रॉब्लम को ये इसमें होता है ये प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन। अब हमारे पास प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने जो है, ठीक है, उसका डिज़ाइन हमने क्रिएट कर लिया। जब हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उसका डिज़ाइन एक रफ में स्केच बनाते हैं कि इसमें ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इतना हमारा बजट है, तो जब हमारे पास उसको सारा हमने उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, तो फिर उसमें हमने सोल्यूशन सेलेक्ट करना होता है कि जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है, जिसके ज़रिए से हमारी कॉस्ट भी कम आए, टाइम भी कम लगे, और हम जो है अपनी प्रॉब्लम को भी जो है वो अचीव कर सकें, अपने गोल को भी अचीव कर सकें। चूजिंग द बेस्ट सोल्यूशन इन्वॉल्व एवेल्युएटिंग डिफरेंट अप्रोचेज एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट वन। मतलब आपने को वेबसाइट बनानी है, जैसे मैंने कोई भी प्रॉब्लम आपने सोल्व करनी है, तो आपके पास एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मल्टीपल सोल्यूशन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसको मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके पास अवेलेबल हैं एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के, लेकिन हमें उसमें जो डिज़ायर रिजल्ट चाहिए, जो हमारी आउटकम जो हमें चाहिए, जो हमारी जिससे कॉस्ट भी कम लगे, उसमें हमारे जो रिसोर्सेज भी कम यूज़ हों, तो हम वही वाला पाथ यूज़ करेंगे जो हमारे जो यूज़र की नीड है वो भी पूरी हो। डिज़ाइनिंग द सोल्यूशन रिक्वायर क्रिएटिंग डिटेल प्लान और एल्गोरिथम, और फिर हम उसको डिज़ाइन करेंगे, उसकी कुछ जो है सोल्यूशन रिक्वायर्स है, और डिटेल प्लान और एल्गोरिथम हम उसको राइट करके अपने प्रोग्राम को जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उस सोल्यूशन को हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इन तीन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम किसी भी प्रॉब्लम है, वो हमारी रियल लाइफ भी हो सकती है, वो हमारी किसी कंप्यूटर रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे हमने वेबसाइट की एग्जांपल देखी, तो इसको यूज़ करते हुए हम अपना जो है डिज़ायर आउटपुट जो है बेस्ट अपनी जो है अपनी प्रॉब्लम को का सलूशन जो है हम ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं आपके मिस ना हों।